won the toss and decided to field first. Is going to be captain himself brought into the attack. Is the focus all-rounder in this season, ranking on number 4. Yes, Bholenath is the Jai Bholenath Sports is the also very famous team previous from 25 years. And he's going to be Suraj. He's a pace and curious bowler like Yasir Sheikh, like Qasim Babu, like Jilani, like Santosh Madhvi. Here goes Suraj, right arm over the wicket, facing him a complete technique batsman, Jayesh Patil Jr. Lot of depend on Jayesh Patil. Here goes Suraj, right arm over the wicket. Goes to Jayesh, beautiful ball, beats him just past the edge. What a start. And today I think the pitch is given away lot of assists for bowler. Look at that beautiful ball, totally open batsman, half cock forward, just past the bat. Beauty, absolute beauty from Suraj Kene. Pitch of a delivery, little bit away movement. Here goes Suraj Kene. One of the fighter captain he is. Goes to Jayes up to the batsman with the short back lift, gentle push in covers. And with the stroke they threw for one. Jayesh Jr. off the mark and one for no wicket. Jayesh Patil Jr. is technically very sound and his partner Kumar is also good stroke player. They both are right-hander. And here we watch Suraj Kene. Goes past us. Ball this time chipped away over the infield. Couple of bounces cross the boundary for 4. What a shot. Effortless stroke played by batsman Kumar. Full stroke in power play overs. Look at there, just a punch, just a chip. I think there is a effect of wrist. Only punched as ball, clear the mid-on. Here goes Suraj. Goes to Kumar, fine delivery. Appeal for LBW, chance of run out. There is the overthrow. And finally batsman taken to Yash Patil is there. Thrumbling by Sandeep Tare. Slightly sloppy work in outfield. Another fine delivery, but impact is outside the off stump. So that was an easy decision for umpire Shakil Koti. 7 for no loss, Winner Sports. Here we go. Yesterday, umpire Gotia in Aditya Cup, the dancing entertainment in Aditya Cup yesterday. Here goes Suraj Kene. All the best from umpire Gotia to NCP Cup. NCP Cup available on YouTube. Type only NCP Trophy 2017. Here we go. This time try to play in front of wicket. Ball is travelling to Gali. Couple of bounces. Not a confident looking drive from the batsman. 1-2 score now. His score was up to 8 for no wicket. Suraj Kene found the outside edge on that occasion. But luckily for the batsman, that ball did not travel straight to the fielder. It was in the air for a while. Here we go, Suraj. A ball this time put away in the air over the infield. And oh, what a catch. Unbelievable taken from the fielder, racing 20 yards from his position.
the ball and taken in the end. Priceless wicket. Jayesh Patil Jr. is out for cheaply, out for just one. Winner Sports 8 for 1. एक ओवर की समाप्ति, 8 रन आउट हुए होने वाले बैट्समैन थे जयेश जूनियर। ये रहता है बड़े मैच का दबाव। हालांकि पहले मैचेस में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की जयेश जूनियर ने। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से अब दर्शन को बुलाया। बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा था दर्शन ने। दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, एनआर बोरपाड़ा और पायनियर। और आज का जो चौथा मुकाबला है वो दोनों टीमों के बीच में पहला सेमीफाइनल रहेगा। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं। चौथा क्वार्टर फाइनल, सबसे बड़ा मुकाबला जानवी बनाम बी इंडियन। इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में अच्छा शॉट, बल्ले की बीचों बीच लेते हुए बैट्समैन, 1 रन। हर्षद अपना खाता कुमार 6 पे पहुंचे और हर्षद अब सामना कर रहे गेंदबाज दर्शन का। महिंद्रा स्पोर्ट्स को मात देने में हर्षद की बड़ी भूमिका रही थी। 30 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। इस मरतबा ज्यादा बाहर कटी वाइट। 1 रन से स्कोर 10 पे पहुंचा है। सुबह के आज पहले मुकाबले में पायनियर ने चारों शाने चीत कर दिया नवाब स्पोर्ट्स को। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, पैरों में निशाना, ड्राइव किया मिड ऑन पे, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े, 1 रन। एक खासियत है युतिका के गेंदबाजों की, वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और बैट्समैन को जगह या रूम नहीं देते। और ऐसी गेंदबाजी टेनिस क्रिकेट में काफी कारगर भी साबित होती है। बैट्समैन कभी कभी अक्रॉस द लाइन भी खेलने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर अक्रॉस द लाइन खेलते हमने देखा है टेनिस क्रिकेट में। और विकेट टू विकेट गेंद रहती है, चूकते हैं तो फिर विकेट मिलने की संभावना बन जाती है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए छोटी गेंद हुक करने की कोशिश, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1 रन से स्कोर 12 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। दिशा इन हो रहे हैं थोड़े से दर्शन, 2 वाइट गेंदें कर चुके हैं। विनर स्पोर्ट्स को शुरुआती झटका लगा है, तो यहाँ से एक पार्टनरशिप यदि बनती है तो अच्छा स्कोर वो खड़ा कर सकते हैं। विकेट अभी भी अच्छा है बल्लेबाजी के लिए। पिछले मैच में हालांकि स्ट्रोक सिलेक्शन गलत रहा था और गेंदबाजी बहुत बेहतरीन रही थी पायनियर स्पोर्ट्स की। बिल्कुल, सभी गेंदबाजों ने आगे रखा था गेंदों को और मोमेंट ऑफ स्टंप के बाहर था उनका। दर्शन फिर से आगे रखा था, ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, डीप में 1 रन बना। यश का थ्रो, इरादों को बदला ये देखते हुए कि सीधा स्टंप्स पे थ्रो आ रहा है डीप से। बढ़िया क्रिकेट, अच्छा शॉट खेला था नीची बैकलीफ के साथ, बहुत बढ़िया आउटफील्ड में फील्ड किया और थ्रो किया। 13 पे पहुंचा स्कोर। इस मरतबा पुल और पावरफुल 6 रन। लगे 440 वोल्ट छोड़ने से दिल। गेंद उसी मूवमेंट का अच्छा लाभ उठाया बैट्समैन ने, इसीलिए उनके स्लॉट में गेंद आ गई क्योंकि गेंद अंदर की जानिब कट रही थी। बहुत ही क्लेवर शॉट खेला है वहां पर बैट्समैन ने। स्कोर 19 पे पहुंचा है, दूसरा ओवर चलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फुल टॉस गेंद फ्लैश किया और नो बॉल। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, नो आर्गुमेंट्स प्लीज। फ्लैश किया था वहां पर, कमर की ऊंचाई पे गेंद थी। हालांकि पॉइंट पे कैच जरूर हुआ था। 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए 21 पे पहुंचा स्कोर। ये देखिए, क्योंकि लगभग सीने के करीब गेंद को पाया था
बहुत ही लाजवाब अंपायरिंग। शकील कोटी और फारूक बर्डी दोनों के हाथ साथ निकल गए थे। फ्री हिट। ये अच्छा अवसर है बैट्समैन के पास, एक बड़ा शॉट खेल सकते हैं। फ्री हिट है। खेलने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गेंद, डॉट। इस बार काफी तेज किया था वहां पर दर्शन ने। ज्यादा सफल करते हुए खेलने का प्रयास कुमार का। ये देखिए, ये देखिए सही निर्णय, विकेटों के ऊपर से गेंद गई थी। इस मरतबा बहुत ही नजाकत भरा ग्लांस खेला था, लेकिन कैच छूटा अल्पेश चौधरी से। जीवन दान मिला था, बहुत तेज निकल गई थी गेंद बल्ले के कॉर्नर से टकराने के बाद। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। ये देखिए बहुत नजाकत भरा वहां पे ग्लांस किया था। अच्छी कोशिश, लगभग लेग स्लिप में जाकर एक हाथ से पकड़ने की। इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं। वैसे भी अल्पेश चौधरी दायत के खिलाड़ी है, उनको बाई तरफ जाना पड़ा था कैच को लेने के लिए। अच्छी कोशिश उनकी, और एक अच्छा ओवर रहा विनर स्पोर्ट्स के लिए। 14 रन आए दूसरे ओवर से, 22 पर 1। YouTube पे अब हमारा टेलीकास्ट दस्तयाब है, आपको सिर्फ टाइप करना है एनसीपी ट्रॉफी 2017 लाइव। 2 ओवर में जो रन बने हैं वो है 22। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि ये वही गेंदबाजी थी जिन्होंने महेंद्रा के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। कप्तान नवीन बहुत अच्छे कप्तान है, और मरता क्या ना करता कप्तान सूरज केनी ने अपने आप को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि यहां से युति का चाह रही कि 1 से 2 विकेट ले। भरत पाटिल फैम टीम है। भरत पाटिल फैम टीम को आप ओपन से भी देखेंगे अल्ताफ बाली ट्रॉफी में, जहां पर भिवंडी के 12 स्टार ओपन के सभी स्टारों से टकराएंगे। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सूरज केने। सूरज केने गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा गेंद आसमान में, फील्डर यश उसके नीचे, और जो काम के लिए आए थे वो काम करते हुए आउट हो गए। अटैक करने की कोशिश, दूर से खेल बैठे थे, और देखिए थोड़ा सा घूम भी रहे थे बैट्समैन। ऊपर लगी बल्ले के, बहुत ऊपर चली गई, और एक अच्छा कैच लिया यश ने। लेकिन ये बात है कि सूरज केने जो टीम के कैप्टन है युतिका के, वो 4थे नंबर पे क्यों रैंक कर रहे हैं? जब बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सूरज केने के पास बहुत अच्छी गति है, और खास बात यह है कि कंट्रोल बहुत अच्छा है उनको अपनी गति पर। लाइन अच्छी रखते हैं, बहुत ज्यादा वेवर्ड कभी भी नहीं होते हैं। सूरज केनी आगे रखा था, लिफ्ट किया, फील्डर देखते रह गए, और गेंद 6 रनों के लिए। ये इस बार बहुत दूर से हालांकि खेले थे, लेकिन संपर्क बहुत बढ़िया, वाइड हाफ वाली थी, सामने की तरफ खेला उन्होंने उछालकर 6 रन। नंबर 4 पर जीतो आए हैं, हालांकि पिछले मैच में अभी आए थे, और अभी और हर्षद के बीच में ही बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी महेंद्रा के विरुद्ध। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज केने।
सामना करेंगे अरशद। स्कोर है इस वक्त 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सूरज केने। चार 400वां छक्का था एनसीपी ट्रॉफी 2017 का। बहुत अच्छी गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अब जाकर यूट्यूब पे हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। 1 रन से 29 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बढ़िया वापसी गेंदबाज की। ओ, थोड़ा सा मूवमेंट वहां पर, बहुत अंदर की तरफ खेल रहे थे बैट्समैन। उन्होंने सोचा कि अंदर की तरफ आएंगी, जिस तरह से एंगल बन रहा था, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। आज लेट देवीदास ट्रॉफी का लॉट फॉर्म है। इस मरतबा बढ़िया गेंद और आउट। बढ़िया बाउंसर था, हेल्ड नहीं कर पाए थे। ने आज आप सीधा एवरग्रीन क्रिकेट से 6 बजे जाइए ग्रीन लैंड पे, जहां पर लेट देवीदास कप का लॉट फॉर्म है, जो चैलेंज पे खेला जाएगा कल, परसों और डे आफ्टर टुमारो। खराब शॉट वहां पर, बॉडी वेट उनका बैकफुट पर नहीं ले सके थे बैट्समैन, और पहली ही गेंद खेल रहे थे इस मैच में जीतू। सही सोच गेंदबाज की, बाउंसर से उनको टेस्ट किया और उनका विकेट प्राप्त किया। आपके पास यदि गति है तो आप यॉर्कर बाउंसर्स कर सकते हैं। गेंदबाजी के लिए सूरज केने, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 30 रन। टोटल बहुत अच्छा है जहां तक गेंदबाजी का सवाल है विनर की। एक अच्छा टोटल हम कहेंगे, लेकिन सूरज केने अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। अब तक उन्होंने 3 विकेटें जो गिरी है वो तीनों विकेटें हासिल की है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया बैकआउट ऑफ द पॉइंट। नजाकत बढ़ा हुआ स्ट्रोक, 4 रन। नजदीकी क्षेत्ररक्षक भी रखा था, लेकिन उसका दबाव अपने ऊपर नहीं लिया और रोक सकते थे फील्डर। यही जोड़ी थी कल जिन्होंने महिंद्रा के सामने 68 रनों की पार्टनरशिप की थी, ये भी तो नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद थी, बैकलीफ को नीचा किया था, डिग आउट किया, 1 रन। क्या ओवर था, कुछ अच्छी गेंदे, कुछ लूजनर, और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 35 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 3 विकेटों के नुकसान पर विनर स्पोर्ट्स टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। कुल मिलाकर 13 रन खर्च किए अपने दूसरे ओवर में सूरज ने। पहली गेंद पर उनको विकेट मिला था इस ओवर में। अगेंस्ट द स्विंग स्लॉग किया था कुमार ने, 8 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत छक्का डाउन द ग्राउंड हर्षद के बैट से। फिर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया था जीतू का। उससे पहले बीट भी किया था वहां पर हर्षद को। पूरा ओवर दिखाया जा रहा है। यूट्यूब पर बाद में हाइलाइट्स देखते हैं खिलाड़ी, बहुत गौर से देखा जाता है कौन सी टीम की क्या मजबूती है, क्या उनकी कमजोरी है, काफी अभ्यास किया जाता है।
गेंदबाजी के लिए इस वक्त दूर वाले छोर से दर्शन को कंटिन्यू रखा गया है। अच्छा स्ट्रोक आउटफील्ड में, 1 रन। सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। रन संख्या हम देखें तो बहुत अच्छा स्कोर अब नजर आ रहा है। अब दर्शक बढ़ते हुए, क्योंकि बी इंडियन खेलने जा रही है। अगला मुकाबला बी इंडियन बनाम जानवी स्पोर्ट। फुल टॉस बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, गैप में 4 रन। बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने देखा फुल टॉस गेंद थी, दूसरे बैट्समैन रहते मिड विकेट पे खेलते। उन्होंने देखा कि एक्स्ट्रा कवर खाली क्षेत्र है और वेकेंट एरिया में बहुत बढ़िया ड्राइव करते हुए 4 रन। गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई। टाइमिंग बहुत ही शानदार थी। फिर से अब नजदीकी क्षेत्ररक्षक, इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, फील्डर पहुंच रहे हैं। ओ बढ़िया कोशिश थी, बाउंड्री निश्चित रूप से बचाई है। संदीप तरे थे, बहुत ही अनुभवी हैं संदीप तरे, लेकिन क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षद। दोनों बैकलिफ का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊंची और नीची बैकलिफ का। और जब आप सीधा स्ट्रोक खेलते हैं तो आपके आउट होने की जो चांसेस है वो कम रहते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे इस समय हर्षद। 20 पर खेल रहे, 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से। 1 चौके की मदद से 6 पर बल्लेबाजी कर रहे अभी। दिमाग लगाकर बल्लेबाजी पिछले मैच में दोनों ने भी की थी। यासुद्दीन को जिस तरह से खेला था उन्होंने, उनके खिलाफ चांस नहीं ले रहे थे। अभी भी एक सिली मिड ऑफ। इस बार शॉर्ट आर्म पुल और पावरफुल, सक्सेसफुल भी, 6 रन। वो काफी बुलंद हो चुके हैं। हालांकि उतनी खराब गेंद नहीं थी। ये देखिए, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया अंदर आती हुई गेंद पे। बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट आर्म पुल और पावरफुल, 6 रन। इतना आसान शॉट नहीं था। गेंदबाज ने भी पूरी कोशिश की थी कि बड़ा शॉट खेलने ना दे, लेकिन वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से वो शॉट खेला था हर्षद ने। बी इंडियन के कैप्टन और जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए आना है। एक और बेहतरीन पारी खेलते हुए हर्षद। फिर से एक करारा ड्राइव, डीप में से फील्डर आए। ओह, वहां पर हड़बड़ाहट और बैट्समैन रन आउट। महत्वपूर्ण विकेट, हर्षद को लौटना होगा पेविलियन में। बहुत बढ़िया बारी खेली उन्होंने। 3 सिक्सर लगाए, 1 चौका लगाए और आउट होने से पहले 27 रन बनाए। व्हाट इनिंग ही प्लेड। हर गेंद को मिडल कर रहे थे, वाइड ऑफ, डीप, मिड ऑफ। बढ़िया क्षेत्ररक्षण वहां पर संदीप तरे का, और अच्छा थ्रो भी। वो तो बहुत अनुभवी है। उनको पता था कि हर्षद को अगर लौटाना होगा तो थ्रो को बेल्स के ऊपर करना होगा। और कल इसी तरह से गैसुद्दीन शेख के हाथों से जो रनआउट छूटा था वही महंगा पड़ा था महिंद्रा को। स्कोर 49 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज वीरेश। स्ट्राइक इस समय अभी के पास। अभी भी चौथा ओवर चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद थी, तेज गति से अंदर की तरफ आई थी। लेट खेला उसको और 1 रन पूरा किया। 50 रन पूरे हुए इस सिंगल के साथ विनर स्पोर्ट्स के। 4 ओवर में जब 50 रन हुए तो खतरे की घंटी बज चुकी है युतिका स्पोर्ट्स को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं विनर स्पोर्ट्स की। विनर स्पोर्ट्स मैंने पहले भी कहा था आपको, अजय गरत,
कि छुपा रुस्तम टीम है एनसीबी कप में। और इस एनसीपी कप में बहुत से उलटफेर हुए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से विनर स्पोर्ट्स ने महिंद्रा को मात दी, नवाब स्पोर्ट्स ने किस तरह का क्रिकेट खेला था, हालांकि आज उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाए। रमणीक स्पोर्ट्स ओवली ने मराठा पंजाब को जिस तरह से परास्त किया था, तो बहुत कुछ हुआ है इस एनसीपी कप में। दर्शन आज महंगे साबित हुए इस मैच में। 2 ओवर में 29 रन खर्च किए। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। लेकिन एनसीपी कप तक जो टैली आ रही है तालुका क्रिकेट में, अभी भी हम कह सकते हैं कि अब की बार धनेश कुकसे की सरकार 4 कप के साथ पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम नंबर 1 पे रैंक कर रही है। 2 पर महिंद्रा स्पोर्ट एमएलए रुपेश मात्रे फैम टीम, 3 पे एनआर है, लेकिन एनआर अभी भी इस कप में बाकी है। क्या पायनियर खाता खोलने जा रही है, क्या बी इंडियन खाता खोलने जा रही है, क्या यूटी का खाता खोलने जा रही है, क्या विनर खाता खोलने जा रही है, या फिर जानवी खाता खोलने जा रही है, या फिर एनआर 3 कप के साथ महिंद्रा के साथ 2 नंबर पे रहने जा रही। सभी सवालों का जवाब दोस्तों आपको कल शाम में मिल जाएगा। एनसीपी की खूबसूरत शाम। 2 ओवर का खेल शेष विनर स्पोर्ट्स की इस पारी में। अभी और वीरेश 2 अच्छे बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है। वीरेश ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है, 7 पर खेल रहे हैं अभी। और गेंदबाजी के लिए युवा पराग कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 7 रन दिए थे 1 ओवर में। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि कल अभी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, और मैंने कहा था कि अभी ने शायद साबित कर दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, 37 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी महिंद्रा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। पराग ने कल एक विकेट भी लिया था। फील्डिंग की सजावट, एक शॉट थर्ड मैन काफी वाइड है गली की दिशा में, अब उसको बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ला रहे हैं। और शॉट फाइन लेग पर जो खिलाड़ी था उसको शॉट थर्ड मैन की दिशा में ला रहे हैं कैप्टन, और एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, बाकी सभी फील्डर्स बाउंड्री पर। पराग की पहली गेंद, वाइड फुल टॉस, ड्राइव किया, बढ़िया शॉट है गैप में, डीप में जब तक फील्डर उठाते 2 रन। अच्छा स्ट्रोक था, काफी जगह मिली थी बैट्समैन को। Yes, that was a wide full toss delivery and picks on the full toss and firmly driven past the extra cover. No chance for Sandeep Tare, but well cover from the fielder in deep. And finally batsman gets easy 2 runs. बावन रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदें शेष है। 20 रन और भी बनाते हैं विनर स्पोर्ट्स के बल्लेबाज तो 72 रन एक अच्छा टोटल रहेगा। इससे संतुष्टि मिलेगी विनर स्पोर्ट्स के कैप्टन को। लेकिन क्या युतिका स्पोर्ट्स के गेंदबाज वहां तक पहुंचने देंगे? दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पराग, फिर से काफी बाहर रखा था, ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे। ओवर थ्रो, ओ नहीं बैकअप कर पाए फील्डर, और ये तोहफे के रूप में रन आते हुए कुल मिलाकर 5 रन। महंगे पड़ सकते हैं ये रन जब कप्तानी ने इस थ्रो को किया हो। हालांकि गेंद स्टंप पे लगती भी तो जो संदेह का लाभ है वो बैट्समैन के फेवर में जाता। ये देखिए किस तरह से गेंद को मिड ऑन पे खेला था, एक एक्शन में उठाया और कोई भी बैकअप नहीं कर पाया। गेंद 4 अतिरिक्त रनों के साथ कुल मिलाकर 5 रन आते हुए। ऑफसाइड में 4 खिलाड़ी अब नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी ऑफ स्टंप के काफी बाहर हो रही है, जो गाइडलाइन अंपायर के लिए होती है उसके भी बाहर गेंदों को रखने की कोशिश पराग की। अब फिर से परिवर्तन फील्डिंग में, समय का पूरा ख्याल रखना है युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन। अगला मुकाबला बी इंडियन बनाम जानवी
दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है। इस बार खेलने का प्रयास, लेकिन चूके अंपायर की तरफ देख रहे थे बैट्समैन। लगातार गेंदों को फुल रख रहे हैं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रख रहे हैं ताकि ऑन साइड में खेलने का मौका ना मिले बैट्समैन को। यही सोच नजर आ रही है। अधूरे मन से खेले ना खेले, आखिरकार बल्ला जरूर चलाया था वहां पर वीरेश ने। रिवर्स स्वीप, बहुत बढ़िया शॉट, गैप में निकाल दिया है। आउटफील्ड तेज है, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त विनर के बल्लेबाज। जो मोमेंटम पहली गेंद से उन्होंने लिया था, हालांकि जय जूनियर सस्ते में आउट हुए थे, लेकिन कुमार ने जहां से पिकअप पकड़ा था उस पिकअप को अभी तक छोड़ा नहीं है बल्लेबाजों ने। पूरे नियंत्रण के साथ खेले थे, जमीनी रास्ते से दो खिलाड़ियों के बीच में से स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। इन 4 रनों से रन संख्या 61 हो चुकी है। इस बार ऑन साइड में उछाल दिया है, गगन मेदी शॉट, स्टैंड्स में, 6 रन। ये कोशिश आप करते रहिए बाली ट्रॉफी में, मायूस नहीं जाएंगे आप। ये देखिए पावर बैक ड्राइव, पूरी ताकत को झोंक दिया था, और ये देखिए ऊपर के स्टैंड में somebody try to catching। शक्तिशाली प्रहार, महत्वपूर्ण 6 रन। यहां से जितने भी अब रन बनेंगे, युतिका स्पोर्ट्स पर उतना ही दबाव बढ़ेगा चेसिंग में। 67 रन 4 विकेटों के नुकसान पर काफी खर्चीले साबित होते हुए पराग अभी तक 17 रन इस ओवर से आ चुके हैं। अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर पराग। रिवर्स खेलने का प्रयास, विकेट कीपर बीट होते हुए, फाइन जा रही है, चौका। 22 के रूप में 4 रन। बढ़ गई कठिनाइयां अब युतिका की। पराग बहुत महंगे साबित हुए। 5 ओवर की समाप्ति पे रन बने 71। अजय गरत, जिस तरह की गेंदबाजी विनर के पास है, जिस तरह उन्होंने महेंद्रा के नाक में दम कर रखा था, मैं कहता हूं कि यहां से जो भी रन बनेंगे वही महंगे पड़ेंगे युतिका को इस ओवर में। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर विनर्स। आप जाके हमारी आवाज एसएमपी और डेन चैनलों पे शुरू हो चुकी है। एसएमपी और डेन चैनल के व्यूवर्स का भी हम इस्तेकबाल कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं एनसीपी कप क्रिकेट सदाबहार में। वन मैन शो खालिद गुड्डू की जानिब से। एक बात है, अजय गरत के विनर स्पोर्ट, जिसको मैंने पहले दिन से कहा था कि छुपा रुस्तम टीम है और चुपके से आगे बढ़ रही। हालांकि अभी बहुत कुछ होना है। पहले मुकाबले में देखिए पायनियर के गेंदबाजों को डोज दिया गया था गेंदबाजी का, लेकिन विनर के बल्लेबाजों को मनीष कौर ने डोज दिया बल्लेबाजी का। खास बात यह है कि उनका मिडिल ऑर्डर क्लिक कर रहा है इस टूर्नामेंट में। हर्षद, अभी ये जो 2 बल्लेबाज आए हैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं पावर प्ले में, लेकिन मिडिल ओवर्स में रन नहीं बनते हैं, जिससे टीमें पिछड़ जाती है। आखिरी ओवर के लिए अनुभवी अल्पेश चौधरी। स्ट्राइक पर इस समय अभी 14 पर खेल रहे अभी। विद द टर्न, स्लॉग स्वीप और मिड विकेट के ऊपर 6 रन।
अल्पेश चौधरी का। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका के एक्स कैप्टन हंसी कोनिया बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था गेंद को, 6 रन। खास बात है इस बल्लेबाज के बल्लेबाजी में, जैसी गेंद आती है वैसे शॉट्स खेल लेते हैं। आज जिम लेकर और क्लेन मैगरा का जन्मदिन है और 1956 में आज जिम लेकर ने 19 टेस्ट विकेट हासिल किए थे टेस्ट की दोनों इनिंग्स में। आज हनुमंत सिंह ने भारत के लिए डेब्यू किया था 1964 में इंग्लैंड के सामने मद्रास में, और टेस्ट डेब्यू में 105 रन बनाए थे। बात आपने की ग्लेन मैग्रा की, सबसे खतरनाक गेंदबाज मेरी नज़र से तो दुनियाई क्रिकेट में रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। वसीम जाफर ने भी मापोली क्रिकेट धमाका में कहा था कि उनको खेलना इसलिए मुश्किल था कि खेले या ना खेले, उनकी गेंदें ऑफ स्टंप और उसके करीब भटकती थी। लेकिन देखना अल्पेश की गेंद कहां जाती है। फिर से ऑफ स्टंप के बाद स्लॉक किया, टाइमिंग नहीं, यश गेंद के नीचे, और इस मर्तबा आउट। दूर से खेले थे बैट्समैन। उन्होंने ऑफ स्टंप की काफी बाहर से लिया था। इस गेंद को पॉइंट कवर्स में भी खेल सकते थे, लेकिन बैट्समैन की सोच अलग, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया और आउट हुए। 8 गेंदों पर 20 रन बनाए, बहुत ही बढ़िया पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटे। अभी नए बल्लेबाज करण आए हैं। वीरेश खेल रहे 10 रन बनाकर। फिर से तेज किया, बढ़िया गेंद, बिल्कुल बॉक्स में पिच होती हुई। डेथ ओवर्स में ये गेंद बहुत ही कारगर साबित होती है गेंदबाज के लिए। यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर अक्रॉस खेलने की कोशिश वीरेश की। एक चौका और एक छक्का जड़ा है। 5 गेंदें अभी तक कुल मिलाकर खेली है वीरेश ने। फिर से उसी तरह की गेंद, रन लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट और बैट्समैन रन आउट। कि रन आउट है या फिर स्टंप है? रन आउट है। ये देखिए, फिर आगे रखा था, ऑफ कटर थी, शरीर से टकराई, निशाना ठिकाने पे लगता हुआ और बैट्समैन आउट हो गए। में विनर स्पोर्ट्स बढ़िया वापसी अल्पेश चौधरी की। पहली गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद लगातार ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे और तेज रख रहे। बी इंडियन के कैप्टन और जानवी के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल आ चुके हैं। बी इंडियन के कैप्टन उजैर। ओ, ये तो वाइट गेंद को खेल बैठे। बहुत बड़ा अंदरूनी सिरा लगा था बल्ले का। 1 रन, बहुत दूर से बल्ला चलाया। 1 रन से अपना खाता खोला कुणाल ने। अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे करण। विनर स्पोर्ट्स ने एक अच्छा टोटल खड़ा किया है। हालांकि इस आखिरी ओवर में ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं बैट्समैन, सिर्फ 7 रन अभी तक आए हैं। पारी की अंतिम गेंद, अल्पेश चौधरी, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओवर पिच, लॉफ्टेड शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर, लेकिन देखते ही रह गए। 6 रन। ये जो आखिरी गेंद
इक्वेशन बदल दिया और कुल मिलाकर रन बने 84 और 85 रनों की चुनौती। ये देखिए फ्रंट लेग को गेंद की लाइन के अलग किया, आंखों के नीचे बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड स्ट्रोक, 6 रन। कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्क का जब नजर से मिलाई मजा आ गया। टीमें खेल रही है, बी इंडियन और जानवी स्पोर्ट। दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं, रोहित और उजैर। आइए हम फोकसमैन साजिद कुरैशी के हाथों से इस सेमीफाइनल मुकाबले का क्वार्टर फाइनल मुकाबले का टॉस करने जा रहे हैं। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। हेड कहना है वहां पे जानवी के कैप्टन का, और आ गया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कुरैशी। उजैर, एनसीपी कप जूम पकड़ चुका है, क्राउड्स बढ़ गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। वैसे भी स्टेडियम में हर मैच खेलने अच्छा लगता है, और अभी तो बाउंड्री भी छोटी है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो रहा है। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्ड फर्स्ट। इसके पीछे ये रीजन है कि बल्लेबाजी साहिबान फक्की अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, बल्लेबाजी अच्छी चल रही और गेंदबाजी से आप दबाव बढ़ाना चाह रहे। तो ये बताइए कि एक कम से कम टारगेट होगा जहां पर जानवी को आप रोकना चाहेंगे? ये सर देखिए, जानवी बहुत अच्छी टीम है, और अभी एक मैच हम इस सीज़न में उनसे हारे हैं, तो हमारी कोशिश बस इतनी है कि अच्छी बॉलिंग करें और जो भी स्कोर वो दे उनको चेस करने की कोशिश करें। उजैर, ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो कौन से बैट्समैन है, आप पूरी टीम को आउट करना चाहेंगे लेकिन जिनको थोड़ा चीपली आउट करके दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे? सर ओपनिंग पैर है, ओपनिंग पैर बहुत अच्छा खेल रहा है, तो हम इंशाल्लाह ओपनिंग पैर को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि फिर से हाईएस्ट विकेट टेकर की फहरिस्त में आप ऊपर चल रहे, क्या उजैर वही गेंदबाजी करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। All the best. The news from the ground is the Indian won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. Yes, back to cricket now. Beautiful afternoon here at the historical Parshuram Towre Stadium. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. Welcome all of you. Those are watching on YouTube, those are watching on DEN, those are watching on SMP, those are watching on Triple S, and those are watching from the ground. One man show. Khalid Guddu, organizing committee, Sajid Qureshi, Shayan Ansari and Salim Ansari. The match between Winner Sport, the quarter final, and Yutika Sport. Winner set a target of 85. I think very tough total in front of Yutika Sport. Ajay, remember, winner have 2 or 3 spinner bowler in their side. Absolutely, it's a difficult target, but not impossible. Yutika Sports also having very good batsmen in their side. Required rate will be 14.17 runs per over right from the beginning. That's quite high.
The openers are out there. Captain Suraj Kene with Pawan. So Suraj Kene, who is played a superb knock in Deputy Mayor, 73 runs, half century made. Lot of depend on captain's shoulder. Is the informed player, informed all-rounder in this season, and is going to be Kumar. Open the bowling attack. Suraj Kene with Pawan Kene. Next match, B Indian won the toss, decided to field first. Sandeep Tare has not come to open the inning. Different strategy from Yutika. Here we go. First ball goes his back foot, punch, past the cover, racing all the way to the offer. Inside half of the bat, but it went very quickly to the fence. Good quick outfield. beautiful stroke indeed. This is the positive reply from the captain. Goes his back foot and punch past the cover. This time, snap. Always asking for the punishment. Way outside the off stump. Batsman freeing his arms. Lovely shot. Nobody patrolling the boundary. Wide half volley and firmly driven over the infield. One bounce cross the boundary. This is the positive reply from Yutika's captain, the man in form, Suraj Kene. 2 consecutive boundaries so far, and in NCP Cup, the history created in previous 25 years city cricket, 21 batsmen made boundaries hat-trick. Now Kene on boundaries hat-trick, 22 batsmen so far hit boundaries hat-trick. What a start. And here goes Kumar. Goes to Suraj Kene. This time another. Over the infield for 4. And Suraj Kene follow through, picks on the half volley and hits over the infield, taking his chances. Over goes the extra cover for 4. On that occasion, the line was good, but not a length. Again, half volley and little bit inside out over the infield for 4. Suraj Kene is on fire. 3 consecutive 4s. Yes, Yutika needing this type of start and given by the captain himself. 3 boundaries so far. Now the fielder is patrolling right on the extra cover boundary after 3 out of the ground. So now one man patrolling outside the ring at wideish long on. Kumar facing him Suraj Kene. What a player he is. Bharat Patil fame team. This time goes his back foot punch and with the stroke through for 1. Ball is travelling wide of mid off. 1 to score now. His score moves up to 13 without loss. The asking run rate is I think more than 14, but just now 13 for no wicket. Large way to go, but I think this is the positive reply from Yutika Sport. Large batting to follow, like Sandeep Tare is the key player. Now Pawan on strike. Pawan did not bowl in this match. He's a good all-rounder. Yes, he's sending for a pinch hitting, I think. Here goes Kumar. Goes to Pawan, left lone, right decision, away from the office stump, white signal from umpire. 14 for no wicket. Kumar is struggling there.
turning out to be a very expensive over. Here goes Kumar. This time try to play reverse shot. Not a right choice. Over the stumps, well collected by wicket keeper, and there will be no runs. Well bowled by Kumar on that occasion. Kept it outside the leg stump. He saw the batsman ready to reverse it. Here he go. This time chipped away. Couple of bounces to long off, and with the stroke Kumar off the mark, and that marks end of the first over. Yutika positive reply, 15 for no wicket. Lot of wide deliveries, lot of room there for the batsman in initial 3 balls. The first one was short and wide, and then another wide half volley. Batsman took full toe of it. Suraj Kene hit 3 consecutive fours in first over. एक ओवर की समाप्ति पे 15 रन बने और पहले ओवर में अपने इरादे तेवर दिखा दिए सूरज केने ने. डू इट बिफोर डाई. इससे पहले कि आप मर जाए आपको लड़ना है. ये देखिए पूरा ओवर दिखाया जा रहा है. बहुत खूबसूरत फॉलो थ्रू था शॉट के पीछे. मोमेंटम प्राप्त किया है पहले ओवर में, उसको बरकरार रखना चाहेंगे आने वाले ओवर्स में भी. गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से अब बुलाया गया है करण को. इन्होंने महिंद्रा के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. डेड बॉल का इशारा था वो अंपायर का. अब टेलीकास्ट में आप देख सकते हैं सूरज 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 पर खेल रहे हैं पवन. स्मतबा पुल और पावरफुल 6 रन. रहती है गेंदबाजों के लिए. जब आपकी टीम अच्छा टोटल बनाती है तो गेंदबाजी भी अच्छा करना होता है. लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लेन से चूके थे. बहुत ज्यादा खराब गेंद नहीं थी, लेकिन शॉट कितना अच्छा. हल्की सी छोटी गेंद थी, हल्की सी शॉट जिसे क्रिकेट में कहते हैं. शॉट को बना दिया पवन ने, बहती हुई पवन के साथ. जिस तरह हवा बह रही है पवन का बल्ला भी पवन के साथ चलता हुआ स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 21 रन. युति का स्पोर्ट इस सीजन में भले से एक बार रनर्स रही है, लेकिन क्रिकेट लाजवाब खेला है. निहाल और हमारे बीच अली जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है. इस मरतबा पुल और पावरफुल. चिंता तो किसी भी बैट्समैन को होगी. देखना है शेर को 1.25 शेर बनते हैं या नहीं. ओ बढ़िया बाउंसर, अच्छी वापसी, नेस्टी बाउंसर था. 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर. एग्रेशन वहां पर अपना थोड़ा सा गुस्सा दिखाया गेंदबाज ने गेंद के साथ. बहुत बढ़िया बाउंसर, डायरेक्शन बहुत अच्छा था. अच्छा बैटल गेंद और बल्ले के बीच में. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आ रहे. अच्छी गेंद आगे रखा था, मोमेंट था वहां पर, लेंथ गेंद थी. पिछले पांव पे खेले थे लगातार पवन. 2 अच्छी गेंदें, 2 खराब गेंदें, 2 तुम्हारी 2 हमारी, और 2 गेंदें बची हुई. वापसी यहां पर करते हुए गेंदबाज करण. फिर से गेंद को ऑन दिया, अब खेला है इनफील्ड के ऊपर से. हर्षद के लिए मौका नहीं, 4 रन.
शॉर्ट गेंद मिस की हुआ है, एलिवेशन नहीं, पवन आउट, वाइड एट लॉन्ग ऑन। पर पवन लेकिन लंबा नहीं खेल पाए, पुल किया था उन्होंने, खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन चली गई। उसका ये रीजन था कि अपने पिछले पांव को पूरी तरह पीछे नहीं कर पाए थे बैट्समैन। आउट हो गए पवन, जबकि पवन चलती हुई मैदान पर, और पवन ने आउट होने से पहले 17 रन बनाए। युतिका का स्कोर है 31 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब बचे हुए 4 ओवर में साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि 54 रन मुकाबले को जीतने चाहिए, और 54 जब रहते हैं तो 13.50 का आस्किंग रन रेट। लेकिन ऐसे लग रहा है अजय गरत के मुकाबला जिस तरह आगे बढ़ रहा है, ये रंग ला के रहेगा। बहुत ही घटनापूर्ण ओवर रहा था पिछला, 2 छक्कों से शुरुआत की थी पवन ने। ये देखिए, ये दूसरा सिक्सर। युतिका का एक मुकाबला इस सीजन में ऐसा है जो एक तरफा हारे थे अहमद स्पोर्ट्स के सामने डेप्यूटी मेयर में। हालांकि रन बहुत अच्छा आए थे पिछले ओवर से, लेकिन आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवाया। कैरिड अवे हो गए, ज्यादा लगातार शॉट्स जब आप खेलते हो तो ऐसे में विकेट गिरने की संभावना तो बन ही जाती है। नए बल्लेबाज आए हैं पंकज। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया अब जयेश पाटिल जूनियर को। जयेश जूनियर आगे रखा था, गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पे बैट्समैन पंकज ने। 1 रन से स्कोर 32 पे पहुंचा। युतिका को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो फिर कप्तान को वहीं रुकना होगा, और पहुंचना है विनर को तो कम से कम सूरज केनी को वापस करना होगा। और इस मैच में मुझे लगता है कि जयेश पाटिल जूनियर के जो 2 ओवर्स रहेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखना है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंद से शुरुआत भी की उन्होंने। फुल टॉस गेंद, बैकलिप को नीचा किया, गेंद को ड्राइव किया, डीप एक्स्ट्रा कवर में दूसरे के लिए निकल पड़े पूरा करते हुए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि पहले ही मन बना लिया था कि गेंद कैसी भी मिले उसको सिर्फ पुश खेलेंगे। जी हाँ, माइंड सेट वैसा ही था, लेकिन समझदारी भरा क्रिकेट। देखा था कि फील्डर काफी दूर है, ज्यादा जोर से उन्होंने खेला नहीं ताकि तेजी से गेंद ट्रेवल ना करे फील्डर के पास और दूसरे रन का मौका बने। स्कोर इस वक्त 34 पे पहुंचा है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को गैप में, 4 रन। सूरज के ने, ये देखिए आगे निकले, वाइड हाफ वाली मिली, बल्ले के बीचों बीच लिया था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन मौका नहीं था। आज सुबह तो पायनियर के गेंदबाजों के नाम रही, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी फिर से चलती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। फुल टॉस गेंद भेज दिया है, 6 रन मिड विकेट। सूरज, ये देखिए पहले वो सोच रहे थे कि शायद पुश करेंगे ऑफ साइड में, लेकिन देखा कि बहुत अच्छा मौका है, दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। बॉटम एंड का अच्छा उपयोग। बिल्कुल, 2 मुकाबले ऐसे हैं जो चेसिंग में बहुत अच्छे रहे हैं। आपको तो पता है धनेश ने 99 का लक्ष्य छुआ था मापोली क्रिकेट धमाका में महिंद्रा के सामने गोल्डन 6 के बाद। फिर से एफर्टलेस स्ट्रोक, 4 रन ऑफ हिज हिप्स। ये नटराज शॉट है, ये देखिए नटराज जिस तरह की वो मूर्ति रहती है डांस की देवता,
बिल्कुल उसी शैली में आते हुए क्लास। बहुत ही खूबसूरत शॉट, गोल्डन ग्रीनिच की याद ताजा होती हुई। स्कोर 48 रन, थो डाला गेंदबाजी को। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान? 29 रन पे। ओहो, चॉप किया, क्लासिकल स्ट्रोक, 1 रन। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। 30 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है, एक गेंद अभी भी बची है। 1 टू गो। बकौल हमारे ऑफिशियल स्कोरर के, नहीं, ओवर हो चुका है। साहिबा मोमिन वो भूल गए जो बाहर गेंद गई थी। 3 ओवर में कितने रन बने? 49 रन। अजय गरत, आपने कहा कि जयेश पाटिल जूनियर के 2 ओवर बहुत कीमती है, लेकिन वो पहले ओवर में तो पहुंच गए 18 रनों पर। यानी कि अब यह भी तो हो सकता है कि शायद वो दूसरा ओवर ना करे। देखना है क्या होता है। हम पहले तो गणना नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में गेंदबाजी की है, कैप्टन को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और सोचने पर मजबूर हो गए। ये बल्लेबाजी लाजवाब कर रहे सूरज के ने। नहीं, कप्तान किसको बनाया जाए? जो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो। सूरज केने 4थे नंबर पे जो रैंक कर रहे, अब ऐसे लग रहा है कि संतोष मडवी के आगे निकल रहे। ऑलराउंडर की फहरिस्त में अब वो 3 नंबर पे आने जा रहे। ये देखिए, ये शॉट जब उन्होंने खेला था नटराज के अंदाज में आकर, बहुत ही खूबसूरत शॉट था। प्लेसमेंट कितना अच्छा रहता है जब वो स्ट्रोक्स खेलते हैं। ये जो उनकी इनिंग है, ये जो बल्लेबाजी उन्होंने की है, अजय गरत कहना होगा कि अब वो, अगर तालुका क्रिकेट की, सिटी क्रिकेट की रैंकिंग को हम देखें तो अब 3 नंबर पे आने जा रहे। यहां से जरूरी रन रेट अब 12 का हो चुका है प्रति ओवर। 3 ओवर में 36 रन चाहिए जीतने के लिए युतिका स्पोर्ट्स को। युतिका के पास एक ही चारा है कि आपको विकेटें लेना होंगी। अगला मुकाबला, बी इंडियन वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। आप देख रहे हैं सदाबहार क्रिकेट। बढ़िया शुरुआत दी सूरज केने और पवन ने। पवन ने आउट होने से पहले 8 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। 9 गेंदों में 30 पर खेल रहे सूरज केने। पंकज खेल रहे 1 गेंद में 1 रन बनाकर। अब मरता क्या ना करता लेग ब्रेक गेंदबाज अरशद को बुलाया गया है। थोड़ा सा समय लेते हुए विनर के कैप्टन, और सीधी निकल गई स्टंप के ऊपर से। भाग्यशाली रहे बैट्समैन। हालांकि छोटी गेंद थी, थोड़ा बहुत टर्न जरूर था वहां पर। ये देखिए, सीधी रखा था गेंद को वहां पर गेंदबाज ने। अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश सूरज की। पहली डॉट बॉल खेली है उन्होंने इस पारी में। अभी तक 5 चौके और 1 छक्का जड़ चुके हैं। हर्षद राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ा सा फ्लाइट दिया, लॉफ्टेड शॉट सीधे फील्डर के पास। बड़े विकेट का पतन। लाया हर्षद को इसीलिए था कि सूरज केनी का विकेट चाहिए था। हर्षद बहुत अच्छे लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और इस मर्तबा क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन को। बड़ा झटका लगता हुआ सूरज केने आउट। बिल्कुल विकेटों पर आती हुई गेंद थी। हालांकि मिडल किया था उन्होंने, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच। एक अच्छी पारी का खात्मा हुआ। 11 गेंदों में 30 रन बनाए कैप्टन सूरज केने ने। 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर युतिका। अगले मुकाबले के लिए अभी से काफी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। मुकाबला बहुत बड़ा है, इसलिए बी इंडियन और जानवी दोनों को पूरे तालुका की तरफ से ऑल द बेस्ट। और यही कारण है कि मुकाबले पे कंसंट्रेट रखने की वजह से हम अपने मोबाइल फोन ऑफलाइन कर रहे हैं। नए बल्लेबाज अल्पेश चौधरी। इनके बाद भी हम देखें तो अनुभवी बैट्समैन संदीप तरे का आना बाकी है। और अच्छा सेट किया है यहां पर युतिका के लिए ये मैच सूरज केने ने।
बैटिंग ऑर्डर के चेंजेस भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं एक टीम के लिए। पवन को आगे भेजने का जो फैसला था वो भी सही साबित हुआ कुछ हद तक। आते ही स्लॉक किया इन्होंने, क्या बाहर है मैदान के? नहीं। एक और कैच, एक और बड़ा विकेट। फंस गए जाल में अल्पेश चौधरी। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच में 0। बहुत खूबसूरत लेग ब्रेक गेंदे। मैंने इसीलिए कहा था, आपने सुना होगा कि हर्षद उनके बहुत ही मेन फ्रंट लाइन बॉलर है, क्या आज वो 2 ओवर करेंगे ये पूछा था, और बहुत जल्दी हर्षद को मोर्चे पे लगाया। लालच दिया उन्होंने कि आइए बड़ा शॉट खेलिए, बाउंड्री को पार करना है तो कर सकते हैं आप, और यदि थोड़ा भी मिस टाइम हो गया तो ये हश्र होगा। जयेश पाटिल जूनियर ने फिर से एक अच्छा कैच लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखिए आप अजय गरत, या फिर टेनिस क्रिकेट में लेग ब्रेक गेंदबाज जब आते हैं तो अधिकांश बार ऐसा होता है कि रन भी तेज बनते हैं और विकेटें भी तेज गिरती। और हर्षद लेग ब्रेक गेंदबाज है, जिसकी वजह से बॉलिंग में भी एक वैरायटी आ जाती है। पहले तीनों भी गेंदबाज मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे, लेकिन ये स्पिनर है और लेग ब्रेक गेंदबाज विकेट टेकिंग गेंदबाज रहते हैं। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेटें, 0 पर आउट हुए अल्पेश। हैट्रिक का मौका है हर्षद के पास। नए बैट्समैन यश, स्ट्राइक पर है पंकज। हैट्रिक गेंद, देखना है बैट से या नहीं। पीछे जा रही है, फाइन, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। टर्न था, गेंद की लाइन में कहीं भी नहीं थे बैट्समैन। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सबको बीट करती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर अजय गरत, अभी भी मुकाबला बराबरी पे चल रहा है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि इस मुकाबले का जो भी रिजल्ट है, या तो हर्षद की गेंदबाजी लिखेंगी या फिर युतिका की बल्लेबाजी। स्कोर 50 के पार जा चुका है, 53 रन। इस बार थोड़ा सा शॉट रखा, मिस टाइम शॉट। ओ, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी पीछे पीछे जाते हुए जब तक उठाते 1 रन। शॉर्ट गेंद थी और उसका फायदा नहीं उठा पाए थे बैट्समैन। काफी छोटी गेंद थी, पीछे जरूर हटे थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर लगी थी। फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था बैट्समैन का, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई थी। बहुत ही सफल ओवर ये साबित हो रहा है हर्षद का। स्लॉग स्वीप, गेंद हवा में, फील्डर देखते रह गए, बाउंड्री के पार, 6 रन। आप ये देखिए, जॉर्ज बेली की तरह उस गेंद को उन्होंने स्वीप कर दिया था, बहुत ही खूबसूरती के साथ घुटनों के बल बैठते हुए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। 4 ओवर में 60 रन और 2 में अब सिल्वर जुबली रन चाहिए। आ गया आपका इक्वेशन, आपका भी सिल्वर जुबली ईयर है कमेंट्री में। 12 गेंदे 25 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच। पहले मैच में दर्शक थोड़े से निराश हुए थे क्योंकि एक तरफा मैच रहा था आज का, लेकिन ये मैच बहुत अच्छा संघर्ष, कांटेदार मैच हो रहा है। जद्दोजहद घमासान गेंद और बल्ले के बीच में। सब ऑप्शन खुले हुए हैं, या तो युति का सेमी में, या तो विनर, और हो सकता है आपको पता चाहिए कि लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2014 शोएब खान गुड्डू भिवंडी रत्न का जो शो था, उसमें 3 क्वार्टर फाइनल टाई हुए थे और 2 सेमीफाइनल। ये आप देख सकते हैं हमारे अंपायर्स को। अमित सालवी तो बहुत ही डैशिंग डायनामिक वैसे भी नजर आते हैं। विलास यादव उनकी बगल में, हसन मोमिन है, नौशाद
नियाज सभी मैच का मजा लेते हुए गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है जयेश जूनियर को। ये देखिए शान अंसारी उनके लगते जिगर के साथ फुल टॉस और उसको भेज दिया ग्राउंड के जयेश जूनियर को दूसरा ओवर देंगे और दे डाला। अब जब दे डाला तो जयेश ने भी सिक्सर दे डाला। गेंद को पिच नहीं करा पाए। जूसी फुल टॉस, बॉटम हैंड का गजब का उपयोग, काफी दूर जाकर गिरी गेंद बाउंड्री के बाहर। युति का इस वक्त ऊंचाइयों पे जाती हुई अब 11 गेंदों में 19 रन। सवाल ये होता है कि अरशद के लिए कितने रन बचाते हैं जयेश जूनियर। अगर उन्होंने कम रन बचा दिए तो मामला तमाम। अभी रनों का ब्रेकअप देख लेते हैं। पहले ओवर में 15, दूसरे में 16, तीसरे में 18। This one was a biggie. This one was a biggie. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing from Pankaj. Interesting to see in replay. Look at that full face of the bat. Waited for comes to him. Short and pull and powerful. Going and gone out of the ground. Biggie one. अच्छी लेंथ की गेंदों को भी बख्श नहीं रहे वहां पर पंकज। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। पिछली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगे हम देखें तो। मैं नहीं समझता कि कप्तान का सही फैसला था जिन्होंने गेंद थमा दिए जयेश जूनियर को। जब पहले ओवर में उन्होंने 18 रन दिए थे। कहा जाता है कि एनालाइज करना चाहिए। आज जयेश जूनियर का दिन नहीं था। 1 पे आउट हुए, पहले में 18 दिए, गेंद उनको दे दी, 2 में 12 दे दिए। भरोसा उन पर जताया था क्योंकि इससे पहले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबलों में, लेकिन आज नहीं चल पा रहे। आज सवाल ये उठता है कि क्या आखिरी ओवर में मैच जाएगा। मुश्किल है क्योंकि हैट्रिक छक्कों की। कमाल की बल्लेबाजी। प्लेयर्स पेविलियन में काफी खुश है वहां पर खिलाड़ी युतिका के। और भरत पाटिल हमारे बीच में नहीं है जो स्पॉन्सर है, टेलीविजन सेट पे मैच को देख रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। इस वक्त युतिका सेमीफाइनल के दौर को खोलने की तैयारी में। अब तो पूरी तरह से पलड़ा भारी हो चुका है युतिका स्पोर्ट्स का। गति परिवर्तन, क्या ये जाएगी बाहर? जी हां बिल्कुल, दर्शक दीर्घा में 6 रन और बन गए सिल्वर जुबली गेंदबाज। 24 तो दे डाले हैं और यही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा। ये देखिए गति परिवर्तन किया था, बहुत बढ़िया पढ़ लिया, गेंद को भेज दिया स्टैंड में, 6 रन। आपका जब दिन नहीं होता है तो कुछ भी नहीं चलता है, गति परिवर्तन करे या ना करे, स्कोर्स बराबर। आखिरी रन वो भी बनता हुआ, मैच को जीत लिया है इसके साथ ही युतिका स्पोर्ट्स ने। और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई अभिनंदन भरत पाटिल, अभिनंदन युतिका स्पोर्ट, कैप्टन सूरज केने एंड स्पेशली संदीप तरे। हार्ड लक मनीष कौर, हार्ड लक विनर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है कप्तान सूरज केने। 30 रन बनाए, 3 विकेटें ली। धुआंधार बल्लेबाजी पंकज की। 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे लेकिन 5 ही गेंदों में बना दिए। अभिनंदन भरत पाटिल, अभिनंदन युतिका स्पोर्ट, कैप्टन सूरज केने, संदीप तरेन और टीम। हार्ड लक मनीष कौर एंड हार्ड लक विनर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है जो अब तालुका क्रिकेट में 3 नंबर पर रैंक कर रहे हैं सूरज केने।
इस वक्त विशु बाबू मात्रे जो बहुत ही मशहूर लीडर है, इंटरनेट पे देख रहे हैं, एनसीबी कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है और युतिका को जीत के लिए अमर मात्रे ने भी। आइए हम अतीक भाई के हाथों से आपको 2 इनाम दे रहे हैं, जियो सिम और गफ्फार का दिया जाने वाला गिफ्ट हैम्पर। अहमद अली हमारे साथ हैं, उनके हाथों से हम अयूब भाई की मिठाई का बॉक्स और गिफ्ट हैम्पर नूरुल्लाह शेख का दे रहे हैं। अब युतिका के कैप्टन सूरज केनी 3 नंबर पे आ चुके हैं रैंकिंग में। अनेक अनेक अभिनंदन सूरज केनी। सूरज केनी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने सुबह में क्या खाकर आए, लेकिन जरूर ये पूछूंगा कि सुबह में ऐसी क्या प्लानिंग थी जहां पे इतना लंबा लक्ष्य आपने छुआ। हमने सिर्फ यही देखा था कि हमें सेमीफाइनल खेलना है इस राष्ट्रवादी चषक का, इसलिए हम पूरी प्लानिंग करके आए थे कि हम कितना भी स्कोर हमारे सामने वाली टीम हम चेस करेंगे। आपकी पूरी टीम ने टीम वर्क दिया, गेंदबाजी थोड़ी बहुत कमजोर रही, बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त रही, स्टार्ट बहुत अच्छा आपने दिया था और आप 3 नंबर पे आ गए तालुका क्रिकेट के रैंकिंग में। हालांकि बड़ा जो खिलाड़ी रहता है वो आंकड़ों के लिए नहीं खेलता है, टीम के लिए खेलता है। इस जीत को आप किसके नाम देंगे? इस जीत को मैं अपनी टीम के नाम देना चाहूँगा और मैं आगे अच्छा करना चाहूँगा। और आगे जो मुकाबला होना है सेमीफाइनल कल सुबह में, उसकी तैयारी के साथ युतिका आएंगी। हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। ये देखिए शाहन अंसारी अपने सपूत उमर अंसारी के साथ, बहुत खूबसूरत सन ग्लासेस पहन रखे हैं उन्होंने।